یہ ہیں بدلو کی نشریات. اور اہل حق کے سروں پر جب بجلی کڑکے میں شیما کرمانی ہوں اور بدل لو کی نشریات میں اپنا پروگرام نئے رنگی خیال کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پرفارمنگ آرٹس کے ایک خاص صنف پر رقص کے بارے میں. آج ہم گفتگو کریں گے کہ رقص کس طرح سے مزاحمت یا ریزسٹنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں عام لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ رقص جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. تو وہاں جو بھی رقص کرتا ہے وہ ایک انقلابی ہو جاتا ہے، وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ ڈیفائنس میں آ جاتا ہے. اور خاص طور کے جب لڑکیاں یا عورتیں رقص کریں تو وہ تو بات ہی اور ہو جاتی ہے. دیکھیے رقص کیسے ڈیفائنس کر سکتا ہے. میں جب رقص کرتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، مگر رقص تو ہمارا انہیریٹنس ہے، ہمارا ورثہ ہے. یہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتا ہے، یہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے، یہ ہمیں انسان بناتا ہے اور یہ ہمیں خوبصورتی کی طرف، محبت کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے جب مجھے آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہمارے یہاں 11 سال کی آمریت ختم ہوئی اور پہلی دفعہ جمہوریت کا آغاز ہوا، جس روز یہ اعلان ہوا کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنیں گی، وہ جیت گئی ہیں، تو کیا ہوا تھا. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں سڑکوں پر ہر طرف ہر عمر کے لوگ، مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں، بوڑھے، جوان، سب مل کر سڑکوں پر باہر نکل آئے تھے اور سب رقص کر رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے. یہ ایک نیچرل سا، قدرتی سا اظہار تھا ان کی خوشی کا، اور یہ اظہار تھا آمریت کے خلاف ریزسٹنس کا کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک نیچرل قدرتی ایکسپریشن ہے ہمارا. جنرل ضیاء الحق نے تو 11 سال تک رقص کو بین کر دیا تھا. تمام کلاسیکل پروفیشنل ڈانسرز جو پاکستان میں تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. میں نے طے کیا کہ نہیں، رقص کرنا تو میرا بنیادی حق ہے، کیوں اس کو روکا جا رہا ہے؟ کون منع کر سکتا ہے کہ میں رقص کر رہی ہوں، کرنا چاہتی ہوں اور کروں گی. تو میں نے طے کیا کہ میں تو یہی رہوں گی اور میں رقص کرتی رہوں گی. اس وقت سے جب بھی میں نے پرفارم کیا ہے تو میں نے اپنی زندگی کا ایک رسک لیا ہے. یہ ایک سیکیورٹی رسک رہا، مجھ پر لائف تھریٹس رہے، مگر یہ رسک میں نے اس لیے لیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ رقص ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا، ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اسے نہیں بند ہونا چاہیے کسی بھی حال میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مذہب میں یا کوئی بھی مذہب کی کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم رقص نہیں کرو گے، مگر لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ رقص مذہب کے خلاف ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک پدری نظام میں رہتے ہیں، ایک پیٹریارکل نظام میں رہتے ہیں، جہاں پہ میل ڈومینیٹڈ ہے یہ نظام.
ना सिर्फ मेल डोमिनेटेड, मगर सारे डिसीशंस जो हैं, सारे फैसले जो हैं ज़िंदगी के बारे में, समाज के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, ये कौन लेता है? ये मर्द लेते हैं। उन्होंने तय किया है कि किस तरह का समाज होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और जब एक लड़की खड़ी होती है और स्टेज पर जब वो खड़ी होती है, तो वो तो फ़ख्र से ये कह रही है इन मर्दों के सामने, इन मर्दों का ख्याल है कि वो लड़की ये कह रही है कि मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर एक डिग्निटी है, मैं फ़ख्र करती हूँ अपने जिस्म पर। हमें तो ये सिखाया जाता है कि शर्म करो, हया करो, जिस्म को छुपाओ, किसी को मगर जब हम रक़्स करते हैं हम जिस्म नहीं दिखा रहे, हम एक फ़न के ज़रिए एक इजहार कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन लेकर के आ रहे हैं, एक सोच लेकर के आ रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा फ़न जो है वो मेरी सियासत से जुड़ा हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि माय पॉलिटिक्स इज़ माय आर्ट एंड माय आर्ट इज़ माय पॉलिटिक्स। हम इन दोनों को अलहदा किसी भी तरह से नहीं कर सकते। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह तो आएगी। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक टेलीविज़न ऐड पे लोगों को बहुत एतराज़ हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एक औरत की जगह मर्द रक़्स कर रहा होता उसमें, तो फिर भी लोगों को एतराज़ होता? मैं समझती हूँ कि नहीं। अब वो औरत को देख कर के औरत अपनी आज़ादी दिखा रही है, उससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जो कौमें रक़्स के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, जो लोगों के अंदर रक़्स के ख़िलाफ़ नफ़रत होती है, वो अपने अंदर गुस्सा और नफ़रत पाते हैं, वो तशद्दुद की तरफ जाते हैं। और अगर हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ एक्सेप्टेंस है, जहाँ टॉलरेंस है, जहाँ हम अपनी तारीख़ को समझते हैं, क्योंकि रक़्स भी एक ज़रिया है हम तक तारीख़ को पहुँचाने का। अगर हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं और तो हम को इन आर्ट्स को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, इन आर्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग अपने अंदर आज़ाद महसूस करें, अपने अंदर फ्री फील करें और खुशी पाएं, और तभी ये समाज आगे बढ़ेंगे और एक मिलजुल कर एक खुशी की कलेक्टिव सोच पैदा करके हम तरक्की कर सकेंगे। मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये कहा जाता है कि तुमको रक़्स की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ बुरा ज़रूर समझा जाता है, जहाँ लोग पसंद नहीं करते लड़कियाँ या लड़कों को रक़्स करते हुए, ख़ास तौर से लड़कों को भी। लड़कों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो भी रक़्स कर रहा है वो शायद गे है या वो मर्द नहीं है। तो ये जो मर्दानगी और माचोइज़म के ख़यालात जो हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट किए जाते हैं कि तुम्हें रक़्स नहीं करना चाहिए। मगर रक़्स तो हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। रक़्स एक ऐसा फ़न है जो आपको खुशी भी देता है और आपके अंदर मुख्तलिफ़ मूड्स कायम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि रक़्स महज एंटरटेनमेंट नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ये हमें टॉलरेंस सिखाता है, ये हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है। जब हम मिलजुल कर झूमते हैं तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इंसान हैं, कि हम अपने आप को और अपने समाज को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपके सामने एक
चीज़ पेश करना चाहती हूँ। फ़हमीदा रियाज़ का नाम तो आप सब ने सुना होगा। फ़हमीदा अब ख़त्म हो गई हैं, बहुत बड़ी शायर थी उर्दू ज़ुबान की, मगर उनका कलाम कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़हमीदा ने रक़्स को एक नज़्म में एक इस्तिआरे की तरह इस्तेमाल किया है, एक सिंबल, आज़ादी का सिंबल, लिबरेशन का सिंबल, और ख़ासकर औरतों की आज़ादी और औरतों की लिबरेशन का सिंबल। वो कहती हैं कि उन्होंने बयान किया कि एक औरत है जो अपने घर में बंद है और फिर वो देखती है कि मज़दूरों का एक जलसा सामने से गुज़र रहा है। उसको देखकर और उसकी वो आवाज़ें सुनकर उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, वो जज्बा ये होता है कि मैं अपनी ज़ंजीरें तोड़ सकती हूँ। गुस्से का जज्बा, रंज का जज्बा, और सबसे बड़ी बात उम्मीद का जज्बा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक छोटा सा क्लिप जो मैंने कोरियोग्राफ किया है फ़हमीदा की इस नज़म पर। आओ ए हमवतनों, रक़्स करो, रक़्स करो। आइए देखते हैं। जिस्म को रक़्स के गिरदाब में चकराने दो, शहर दर शहर जो हम रक़्स में लहराएंगे, हल्का दर हल्का भंवर बढ़ते चले जाएंगे। जिस्म जो रक़्स करे, ये हैं बदलो की नशरिया।